Now please have a look at this question. We are talking about, isko dekh liye, we are talking about the anatomy or structure of single best answer multiple choice questions. It consists of a stem, then it consists of a lead in or a lead in statement. It consists of 5 options. इन ऑप्शंस में एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जिसको हम की कहते हैं, और बाकी जो है वो लेस अप्रोप्रिएट आंसर है जिनको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं. डिस्ट्रैक्टर हम इसलिए कहते हैं कि जो जरा कम पढ़े लिखे स्टूडेंट होते हैं या कम मेहनत की हुई स्टूडेंट्स को होती जो कम मेहनत किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये दूसरे ऑप्शन जो कि लेस करेक्ट है वो असल आंसर से डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं. So this is basically the structure of a single best answer MCQ. Let's take each one of them individually. Now STEM, yellow wala. The STEM is a clinical scenario or a vignette. And it include mein L nahi hai, I'm sorry for that. It includes description of the patient. Acha, kya description hogi? You can give age of the patient, a 70-year-old, gender, male or female, a lady or a gentleman. Was seen in the outpatient department means site of care, ER में, outpatient में, indoor में, ये सारी bullets दी हुई हैं. उसकी presenting complaint क्या है? Pain है, swelling है, bleeding per rectum है, headache है, loss of function है. Where? Abdomen में, upper limb में, neck में. For how long? You can give some personal history, physical findings, investigations, and the initial treatment given. ये जो 8 या 10 bullets दी हुई हैं, जरूरी नहीं कि आपका विनियट या क्लिनिकल सिनेरियो या स्टेम में ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, लेकिन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है और प्रॉपर ऑर्डर में देनी है. ये नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशंस पहले दे दें और जेंडर बाद में दें और ट्रीटमेंट बीच में डाल दें. इट हैज टू फॉलो द वे a medical student or a house officer takes history. You always start with the age and gender, then the patient, where the patient was seen, what is the presenting complaint, what is the site of the complaint, duration क्या है उसकी, वगैरह वगैरह वगैरह. So you will use these templates to write down your clinical scenario. ठीक हो गया? So this is known as a STEM, in which you give patient's data. This is followed by a lead-in statement, which is blue here. A lead-in statement always follows the stem. ये yellow जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद आपकी lead-in शुरू होगी. It is in form of a question, and this is a closed question. इसके आगे question mark आया हुआ है. And in this case, the lead-in says injury to which of the following vessels is most likely cause for hemorrhage. ये सारी different types हैं आपके lead-in की. And finally, lead-in actually guides the test taker what exactly he or she is to do. इसमें वो क्या आपको task दे रहा है कि किस artery की bleeding injury की वजह से ये scenario हुआ होगा. ठीक है? Shall we move on? Yes, sir. Okay, sir. कोई और अगर मुझे 2-3 और लोग बता दें कि ये क्लियर हो गई तो हम आगे चलें. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, So- sir, it is. Right. So first you will write patient's scenario, which consists of all the data जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन make sure कि relevant data होना चाहिए. खामखा विंडो ड्रेसिंग के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालने की जिसकी टास्क से कोई रेलेवेंस नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा कर देगा, उसका कोई फायदा नहीं है. एंड देन the scenario or the stem is followed by a lead-in statement which is in a question form and which tells the examinee what to do. And अच्छा ये क्या है, जरा इसको कोई पढ़ दे. Dr. Irfan, can you read it for me, please? Are you there? कोई और पढ़ दे. What is cover the option rule? Yes, sir. A test taker should be able to read the
जी and lead in. Cover the options and guess the right answer is without seeing the option set. which means that अगर टेस्ट टेकर ऑप्शंस को कवर कर ले, हाइड कर ले, तो भी वो सिनेरियो और लीडिंग स्टेटमेंट को देख के वो करेक्ट आंसर दे दे. लेट मी गिव, एंड दिस इज नोन एज द कवर द ऑप्शन रूल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. नाउ आई वांट योर हेल्प. प्लीज रीड दिस सिनेरियो in yellow and the leading statement in purple. कोई एक आदमी मुझे बता दे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए. कोलिलिथियासिस. ये कौन किसने जवाब दिया ये? सॉरी, डॉक्टर ग्रीश. ओके, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं भी हैं, लेकिन you think that the most appropriate answer in this patient would be cholelithiasis. Do we all agree to this? Yes, No, sir. sir. No, sir. क्यों? सर इसमें मेरे ख्याल में फैटी है, फीमेल है, Yes, sir. राइट क्वाड्रेंट है, रेडिएट टू द बैक है. These all happens in the cholelithiasis. It could be cholecystitis. The cholelithiasis will gives us clue if the we have a report of the ultrasound abdomen. ठीक हो So गया. it could be acute cholecystitis. It may be due to acalculus. It could be calculus. ओके, it- कोई और it could- इसके अलावा? It could be a acute appendicitis. I think so. Maybe we can keep. in the It's TBR. upper quadrant. It's upper quadrant. क्या अपेंडिसाइटिस अपर क्वाड्रेंट में पेन करता है? No, sir. No, Does it come in the differential diagnosis of pain in the right upper quadrant? The answer is no. So that is out. Sir, pancreatitis हो सकता है, sir. I seen many patients. Agreed. That can be. All right. Because- Thank you so much. Yes, sir. अच्छा, एज अ कंटेंट एक्सपर्ट, क्योंकि ये सर्जरी का क्वेश्चन है और मेरे बहुत सारे कॉलीग्स यहाँ पे जिन्होंने सर्जरी की हुई है, if I was to ask you what is the characteristic radiation of pain of pancreatitis, everybody would answer that it goes straight to the back and not to the right shoulder. तो हो सकता है pancreatitis, लेकिन इस सिनेरियो की बेसिस पे it is not the most appropriate diagnosis. क्योंकि दो आदमियों ने कहा कि cholelithiasis है या cholecystitis है, we all agree as a content that this has something to do with gallbladder. And therefore the most correct answer, अब अगर आप इनमें देखेंगे, इसमें cholecystitis का ऑप्शन नहीं दिया हुआ डॉक्टर गासिया. सर इसमें देखें ना, पेन जो रेफर हो रहा है रेडिएट टू Yes, बैक sir. साइड, तो इसलिए मतलब जो ना ये मोस्ट प्रोबब्ली जो ना कोलिलिथियासिस जो डॉक्टर ग्रीस ने पहले कहा था. ठीक है, एक्चुअली रेडिएट टू द बैक नहीं है, ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है. दिस इज रेडिएट टू द राइट शोल्डर. ओके ठीक है, ओके सर. थोड़ी सी ये टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं. एनीवेज, तो व्हाट इज दिस? अगर आप क्वेश्चन लिखने के बाद अपने ऑप्शंस को छुपा दें और अपने कॉलीग को वो क्वेश्चन दे दीजिए, और अगर वो बगैर ऑप्शंस पढ़े हुए सही जवाब दे दे और अज्यूमिंग कि वो पेन रेडिएट्स टू द राइट शोल्डर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि योर क्वेश्चन इज अ गुड आइटम, and this is known as a cover the options rule. Yes, sir. Sir, in forensic, Yes, this sir. is leading question. A leading question is one who gives its own answer. लीडिंग क्वेश्चन का यहाँ पे कोई यूज हम लगा नहीं सकते. Cover up या उसके ना options नहीं that नहीं, इसको कंफ्यूज ना करें इससे कंफ्यूज. लीडिंग क्वेश्चन यूजुअली हम हिस्ट्री टेकिंग में बताते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन ना पूछा जाए, वो डिफरेंट चीज है. ठीक है, अरे इसमें ऑप्शन का जो है वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं लग रही. पेप्टिक अल्सर का, फैटी फूड से क्या, और एपिगेस्ट्रिक हर्निया है तो देयर इज नो स्वेलिंग है, तो ये ऑप्शन इनएप्रोप्रिएट नहीं है. आधे आप क्या बिल्कुल टेक्स्ट बुक पिक्चर चाहिए आपको कि बस वो देखते ही बता दे कि अच्छा, फिर आप क्या लिखेंगे? कॉली लिखे क्या? अपर एब्डोमिनल पेन एपिगेस्ट्रियम एंड राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर एओर्टिक एन्यूरिज्म में पेशेंट की कंप्लेन क्या है? पेन एपिगेस्ट्रियम है ना, एंड Yes, राइट sir. अपर क्वाड्रेंट. अगर मैं आपसे कहूं कि राइट अपर क्वाड्रेंट और एपिगेस्ट्रियम में पेन की मुझे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दें, तो क्या आप ये लिस्ट नहीं बनाएंगे जो यहाँ लिखी हुई है? सर इसमें बनेगी सर. नहीं, जैसे पेप्टिक अल्सर लोगे तो डिस्ट्रैक्टर ज्यादा इफेक्टिव होगा देन एपिगेस्ट्रिक हर्निया लाइक. ग्रेस, आपको टेक्स्ट बुक पिक्चर नहीं बनानी है.
ट्राई टू Okay. अंडरस्टैंड दिस, Okay. ट्राई टू, ठीक है ना। इस वक्त हमारा प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट की कंप्लेन है राइट अपर एब्डोमेन में पेन, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये 4 या 5 चीजें तो लिखी हैं ऑथर ने, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। पैरायोटिक लिम्फेडेनोपैथी भी हो सकती है, और बेसल निमोनिया भी हो सकता है, एमआई भी हो सकता है। ये सारी वो चीजें जो अपर एपिगेस्ट्रियम में पेन करती है, लेकिन सब्सिक्वेंट डेटा की बुनियाद पे पॉलीडिस्ट्रेसिस बिकम्स द बेस्ट चॉइस। जो लेकिन करीब अपर तरीन एब्डोमेन पेन मतलब में एज पर कभी रिसर्च कभी के यही है, मतलब जो हाँ ठीक है ना। बाकी अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा आप क्या बनाएंगे, चले जो सिनेरियो ऊपर दिया गया, ये पेशेंट आए आपके पास, इसके कॉलिलिथियासिस के अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके जहन में कुछ और है? इमरजेंसी में तो हम यही कर रहे होते हैं अक्सर, पेप्टिक अल्सर पे या कोलिलिथियासिस पे खेल रहे होते हैं, या तो गर्ड पे। नहीं, एपिगैस्ट्रिक हर्निया के पेशेंट भी एक्यूट इमरजेंसी में आते हैं with a strangulated anyways we are not going into the detail of the content, वो तो सर्जन्स बेहतर बता सकेंगे आपको, बस try to understand as a medical educationist कि इसमें पांचों ऑप्शंस relatively, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ओवेरियन सिस्ट, वो कैसा लगेगा आपको? नॉट करेक्ट। That will be irrelevant. इट इज टोटली इररेलेवेंट, लेकिन ये सारे 5 ऑप्शंस कम से कम रेलेवेंस तो दिखा रहे हैं कि ये अपर एब्डोमिनल पेन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ऑप्शंस में क्विकली आप सबको पता है, मैंने आपको अभी बताया था 4 रखें या 5 रखें, आपकी अपनी चॉइस है। इफ यू वांट टू मेक इफ यू आर यू नो हेड बाउंड टू मेक 5 चॉइसेस, 5वां आपको ढूंढने में अगर तकलीफ हो रही है तो बजाय कोई बेकार ऑप्शन खाना पूरी के लिए डालने, बेहतर है आप 4 ऑप्शन रखें। इन ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर होता है जिसको हम की कहते हैं, 3 या 4 हम इनकरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लेस प्लॉजिबल और लेस करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लेस करेक्ट है, उनको हम डिस्ट्रक्टिव्स कहते हैं। दे शुड बी प्लॉजिबल, दे ऑल शुड बी ट्रू, दे शुड बी ऑफ ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम लेंथ, एंड ऑल शुड बी होमोजेनस, and they fall on a single dimension। ये समझ लीजिए। let me show you an example। homogeneous को ध्यान में रखिएगा बात को। look at the question on the left side, are 5 options homogeneous or not? they are not। for example, ऑप्शन ए जो है वो जेनेटिक और हेरिडिटरी या इनहेरिटेंस के बारे में फैक्ट है, जबकि बी जो है और सी वो एसोसिएशन पूछ रहा है, डी जो है वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है या जेंडर पूछ रहा है, और ई जो है वो ट्रीटमेंट पूछ रहा है, विच मीन्स कि दे आर नॉट ऑन द सेम डायमेंशन, दे शुड बी होमोलॉगस। अगर डायग्नोसिस है तो सब डायग्नोसिस होने चाहिए, अगर इन्वेस्टिगेशंस हैं तो सब इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। तो मेक श्योर दैट योर ऑप्शंस आर होमोलॉगस। Let's move on. इसको quickly पढ़ लीजिए and then you take out a piece of paper. Now, this is a proper way of developing one single best answer MCQ. ये 6 steps हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इसको देखिए, और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कोई 10 मिनट का एक एक्सपीरियंस किया था MCQ बनाने में, ज़ाहिर है कुछ लोगों ने अपना शेयर किया कि उन्होंने कैसे MCQ डिसाइड किया कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। बहुत से लोगों ने शेयर नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वेंट थ्रू द सेम कॉग्निटिव प्रोसेस जो डॉक्टर अक्सर ने या डॉक्टर प्रदीप ने या डॉक्टर जहीर ने या जो भी 2-3 लोगों ने हमारे फ्रेंड्स ने शेयर किया था। लेकिन henceforth you will all follow these steps in developing your MCQ. Now, the first step is to select a theme. The second step is you select a sub-theme. Theme और sub-theme क्या होती है मैं अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब भी आप MCQ बनाने बैठे, सबसे पहले आपने थीम को आइडेंटिफाई करना है। थीम क्या होती है? आपके पास जब पेशेंट आता है तो किस चीज के साथ आता है आमतौर पे? It's a clinical presentation. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। उसकी कोई कंप्लेन होती है, उसकी कोई सिम्टम होती है। दिस सिम्टम कैन बी पेन इन द एब्डोमेन, दिस सिम्टम कैन बी हेडेक, दिस सिम्टम कैन बी प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह। कोई ना कोई सिम्टम क्लिनिकल प्रॉब्लम होगी जिसके साथ पेशेंट आता है। सो द पेशेंट कंप्लेन इज टू बी टेकन एज जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। Yes, जी sir. सर, We can hear you. आवाज यस clear है सर, यस सर। ठीक है।
सबसे पहले आज के बाद से आप जब भी एमसीक्यू बनाने बैठेंगे आप थीम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जनरल सर्जरी में अगर मुझे एमसीक्यू बनाना है तो मैं नेक स्वेलिंग, पेशेंट विल वर्क इन माय ओपीडी विद नेक स्वेलिंग, और पेशेंट वुड कम टू माय ओपीडी विद एब्डोमिनल पेन, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं। वही क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस आपने बेसिक साइड पे भी ढूंढनी है, और अभी हमें क्लियर हो जाएगी ये बात। सो द फर्स्ट स्टेप इज यू सेलेक्ट अ थीम एंड देन यू सेलेक्ट अ सब थीम कि पेशेंट की कंप्लेंट के मुकाबले में एज अ डॉक्टर आप क्या करेंगे। आप डायग्नोसिस करेंगे, आप ट्रीटमेंट देखेंगे, आप देखेंगे कि उसका अंडरलाइन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कौन सा। और डॉक्टर राहिल कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। मुंहिंजी जवाबदारी तकड़ मोकलण में आहे। डॉक्टर राहिल कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द माइक। राइट, अच्छा आपने थीम सेलेक्ट कर ली, अभी नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा। पहली स्टेप में आप थीम सेलेक्ट कीजिए, सेकंड स्टेप में देन यू राइट डाउन ए सब थीम एंड देन बेस्ड ऑन द सब थीम यू राइट 6 or 10 ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल अभी डॉक्टर अक्सर ने शायद प्रेगनेंसी का एक केस दिया था, उनकी सब थीम थी इन्वेस्टिगेशंस। In step number 3, you will make a list of 6 to 10 investigations because that is your sub-theme. Investigations are your sub-theme. जब ये आपने 3 स्टेप्स कर ली हैं तो वो जो 6 या 10, 6 से लेके 10 तक जो आपने ऑप्शंस बनाए हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और उसको मार्क कर लीजिए विद एन एस्टेरिस्क। उसको आप स्टार लगा दीजिए या उसको हाईलाइट कर लीजिए या उसको अंडरलाइन कर लें। दिस marked option is your key or the correct answer which for your MCQ. अब उस की की बुनियाद पे अपना सिनेरियो लिखिए और वो सिनेरियो लिखने के बाद जो वो 6 से 10 से ऑप्शन से आप देखिए कि उनमें से कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं 5, उनको रखिए, बाकियों को डिलीट कर दीजिए एंड दिस इज हाउ यू वुड मेक एन MCQ. डॉक्टर अब्रा, I'll get back to you. 2 मिनट है जाइएगा. Now let me give you an example. Step number 1, you select a theme. ठीक है, थीम क्या होती है? पेशेंट का सिम्टम। यहाँ पे हम एनाटमी से बात कर लेते हैं, एनाटमी डिपार्टमेंट से। क्लिनिकल में भी हो सकता है, इट कैन बी एब्डोमिनल पेन, इट कैन बी ब्लीडिंग पर रेक्टम, इट कैन बी वेट लॉस, इट कैन बी मेडिसिन में कफ हो सकती है, हेमोप्टिसिस हो सकती है, ब्लीडिंग पर वजाइना, मतलब दीज आर ऑल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। आपने थीम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे थीम कौन सी सेलेक्ट की है राइटर ने? लॉस ऑफ फंक्शन। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी यू सेलेक्ट अ सब थीम। अच्छा, सब थीम कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इन्वेस्टिगेशन, it can be a diagnosis, it can be a physiological phenomenon, it can be an anatomical structure, it can be a bacteria, it can be a virus, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब सब थीम यहाँ पे क्या है? नर्व है। So you, based on your sub theme, you make about 6 to 10 options. ये सारी नर्व्स के हमने नाम डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, एक्सिलरी नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मीडियन है, रेडियल है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस है और अल्ना है। अब इनमें से एक नर्व को आप आइडेंटिफाई कर लें। इन दिस केस द ऑथर हैज सेलेक्टेड रेडियल नर्व, उस पे आपने एस्टेरिस्क लगा दिया जैसे ही ऊपर लगा हुआ है रेडियल के ऊपर। सो एंड देन यू सेलेक्ट this radial nerve, mark it with an asterisk and write down a scenario based on loss of function because of the radial nerve. In this case, हमारा scenario कह रहा है कि 24-year-old boy presents in the outpatient department 3 days after sustaining a sports injury in the middle of his right arm. The arm is painful and he is unable to extend the wrist. Which nerve is most likely to be injured? आपके पास ये 5 या 6 ऑप्शंस हैं, इनमें जो की है वो रेडियल है, बाकी डिस्ट्रक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हुई बात कि हाउ टू राइट एन MCQ? Yes, sir. Easy or difficult? Yes, sir. Easy है. This is the easiest form of writing a multiple choice question. अगर हम इसी 6 स्टेप्स को सर्जरी में देख लें, क्योंकि मैं सर्जरी में हूं, तो मैं थीम सेलेक्ट करूंगा
abdominal pain, and my sub theme can be diagnosis or my sub theme can be an investigation. Let's assume कि मेरी सब थीम है investigations. अब मैं abdominal पेन और इन्वेस्टिगेशंस की बुनियाद पे जितनी इन्वेस्टिगेशन रेलेवेंट है उनके ऑप्शंस लिख दूंगा. फॉर एग्जांपल आई विल राइट डाउन एक्स-रे चेस्ट, abdominal ultrasound, CT with contrast, CT abdomen with contrast, MRI, angiography. ये मैंने लिख दिए. अब मैंने इस पे अल्ट्रासाउंड को एस्टेरिस्क लगाया क्योंकि मैं एब्डोमिनल पेन और अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक सिनेरियो बनाऊंगा. और मेरा सिनेरियो होगा 50-year-old female presents in the outpatient department with 1 month history of constant discomfort in the right upper quadrant and epigastrium. The pain shifts to the right scapular region and is exaggerated by taking fatty food. What is the most appropriate investigation to reach a diagnosis in this patient? और मेरा asterisk किस पे लगा हुआ है? अल्ट्रासाउंड के ऊपर. So that is how I will build an MCQ. Does that make sense? Yes, sir. थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? मैं देखो नेक्स्ट स्लाइड में. Yes, sir. ठीक है. तो ये जो 6 steps हैं, this should be your line of action when you sit down. तो अब आपने randomly कुछ नहीं सोचना है. सबसे पहले आपने theme सोचनी है. Theme are the different symptoms. You select a sub theme, which can be an investigation, which can be an anatomical structure, which can be a physiological phenomenon हो सकता है, कोई biochemistry में enzyme हो सकता है, anatomy में nerve हो सकती है, artery हो सकती है, muscle हो सकता है, वगैरह वगैरह. And then based on your theme and sub theme, you make a list of options. Mark one option as your answer और उसके ऊपर एक build up कीजिए scenario जो कि उस थीम और सब थीम के साथ बेस्ट मैच हो. फिर आपने जो 6 से 10 तक ऑप्शंस लिखे हैं उनमें से रिड्यूस कीजिए ऑप्शंस जो रिडंडेंट हैं, रिड्यूसिंग देम टू 5 or 4 and then you write down your MCQ. बहुत लंबी खामोशी हो गई है सर. जी ये We जो are here, sir. एनाटॉमी वाला है ना जी MCQ, इसमें ये पूछना चाह रहा था जी. इसमें मिडिल सॉरी जी मिडिल ऑफ हिज राइट आर्म. अगर बच्चे आजकल पता नहीं या तो पढ़ते नहीं या पढ़ाने वाले टीचर हमारे जैसे हैं. अब मिडिल ऑफ रेडियल ग्रूव है या स्पाइरल ग्रूव है, उसकी ट्विस्टिंग इंजरी से, फुट इंजरी से, तो एक्सरे में इसकी और फाइंडिंग लिख देंगे. दे में बी फ्रैक्चर ऑन द स्पाइरल लाइन हो जाए या इसको इतना इसमें आइडिया बच्चे को हो जाएगा कि मिडिल ऑफ द आर्म पे. ठीक है. या इसको स्पाइरल रेडियल ग्रूव इस तरह लिखें तो और कवर अप हो जाएगा या नहीं. मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा था. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट एन एनाटॉमिस्ट. अगर यहाँ पे कोई एनाटॉमी डिपार्टमेंट से है तो वो ज्यादा हमारी अच्छी तरह हेल्प कर सकता है. फिजियोलॉजी का तो बता. कोई एनाटॉमिस्ट नहीं है हमारे पास. नो सर. अब मुझे ये मिडिल ऑफ द राइट आर्म में जो ह्यूमरस में रेडियल ग्रूव होता है, वहां से रेडियल नर्व गुजरती है, तो वो रिस्क ड्रॉप इंजरी पे ना, तो ये बहुत मिडिल ऑफ द अच्छा लगा है. और मैंने कहा अगर एक्सरे देखते हैं कि ये रेडियल ग्रूव की हो गई है ह्यूमरस पे आने, तो और इससे ज्यादा बेहतर ये हो सकता है या यहीं रख दें, ऐसे इस तरह कर दें. आई डोंट नो. देखें ये कंटेंट एक्सपर्ट्स का पैराडाइम है कि वो ये MBBS फर्स्ट ईयर के लिए बना रहा है या MPhil एनाटॉमी के लिए बना रहा है. तो इसकी कितना वो है, क्या इसके अंदर डेटा डालना चाहिए, वो कंटेंट एक्सपर्ट का काम है. लेकिन एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट आप 2-3 बातें जरूर याद रखिए. नंबर 1, there is a proper way of writing an MCQ. पहले हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं as a medical education, not as a content expert, कि you cannot randomly design an MCQ. जैसे अभी हम सुबह हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज की. there is a proper way of writing an MCQ जो ये 6 स्टेप्स दी हुई हैं. दूसरी चीज ये देखिए आप कि एक कंफर्टेबल सा, एक प्लॉजिबल, बड़ा खूबसूरत सा सिनेरियो दिया गया है जिसमें कुछ डेटा दिया गया है, जिसकी बुनियाद पे लर्नर जो है अपनी कॉग्निशन यूज करके
एक करेक्ट डायग्नोसिस पे या करेक्ट ऑप्शन को चूज करता है। तो दो बातें ध्यान में रखिए कि एक तो ये C2 लेवल के क्वेश्चंस हैं, दीज आर नॉट रिकॉल। अगर मेरा ये क्वेश्चन होता है द नर्व रिस्पांसिबल, द इंजरी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज रिस्पांसिबल फॉर रिस्ट ड्रॉप, तो ये C1 लेवल का हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर चूंकि डेटा दिया गया है तो जो है वो ये C2 लेवल का हो जाता है। ठीक है जी सर। चलें, लेट्स मूव ऑन। दिस इज द लास्ट स्लाइड। आप ये 5 रूल्स पढ़ लीजिए, अब आपको दे विल मेक सेंस। नंबर 1, जैसे अभी डॉक्टर मिसाल में डॉक्टर गौतम ने शायद पॉइंट आउट किया था कि सबसे पहले मैं अपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा, उसकी बुनियाद पे एमसीक्यू बनाऊंगा। सो मेक श्योर, देखें आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, 100 होते हैं, 50 होते हैं। सो मेक श्योर दैट questions are used to assess important topics or concept in your relevant subject. अगर आप रेयर टॉपिक से बनाएंगे तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो मेक श्योर दैट ईच एमसीक्यू फोकसेस ऑन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सब्जेक्ट। नंबर 1। हाँ, रेयर कंडीशंस पे आप बना सकते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज क्वेश्चंस की 0.5 या 1% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, each item should not assess C1 level. It should assess application or knowledge. नंबर 3, जो लीड इन स्टेटमेंट है वो बड़ी फोकस्ड होनी चाहिए। जैसे उन्होंने लिखा था व्हाट इज द बेस्ट थिंग, थिंग इज नॉट फोकस्ड। अगर इसको रिप्लेस कर देंगे इन्वेस्टिगेशन से तो ये फोकस हो जाएगी। इट शुड हैव अ क्लियर लैंग्वेज एंड इट शुड बी एंडेड विद अ क्वेश्चन मार्क। इट शुड बी अ क्लोज्ड क्वेश्चंस। ऑप्शन शुड बी होमोजेनस एंड प्लॉजिबल। एंड फाइनली, always revise the MCQs yourself and request your colleagues to revise them and remove the technical flaws, which brings us to our next topic, जो अभी हमारे पास time नहीं बचा है। We'll quickly review them. Let's take a break of 30 seconds, read these laws, these principles, and the forum is open for questions. Anyone? Any questions? The plausible and relevance is the same thing or there is some difference? नहीं, रेलेवेंट अलग चीज है, प्लॉजिबल अलग चीज है। प्लॉजिबल वो है जो आप उर्दू में कहते हैं हाँ ये हो भी सकता है, ये प्लॉजिबल है। ठीक है। रेलेवेंट ये है कि मैं आपको जो भी डेटा दूं वो आपकी टास्क से रेलेवेंस हो, फजूल में ना हो। मिसाल के तौर पे वो उन्होंने कहा था जी कि वो जो एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन था कि 45 ईयर ओबीज लेडी, अब अगर उसके अंदर मैं लिखूं 40 ईयर ओल्ड ओबीज लेडी हु रिसेंटली मैरिड डाइड ऑफ गनशॉट, अब इसमें रिसेंटली मैरिड का कोई रेलेवेंस नहीं बन रहा था। इस वर्ड को आप निकाल भी दें तो आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रेलेवेंस होती है। आप जितनी फजूल चीजें क्वेश्चन में ऐड करेंगे वो रीडिंग टाइम बढ़ाएगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग ना कीजिए, रेलेवेंट फैक्ट्स कीजिए जो स्टूडेंट को हेल्प करे। ठीक है सर। ऑप्शन 4, 5 ये एग्जामिनर्स चॉइस है या इंस्टीट्यूट है या ये बोर्ड ऑफ स्टडी से इसको कराना पड़ेगा? 5 डिफिकल्ट टू फॉर्म। जी बिल्कुल सही है। आजकल यही चल रहा है कि जी 5 बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने इसको 4 पे ले आए हैं। लेकिन you have to follow the policy of your institution, and as a medical education you can always float the idea of putting 4 instead of 5 options, because majority of the institutions now put up 4, including ECFMG में भी शायद 4 है। अच्छा चलें जी, अब एक काम करते हैं, ये एमसीक्यू क्विकली बस हम 15 मिनट में इसको निपटाते हैं। दिस इज जस्ट अ वेरी लाइट एक्सरसाइज। इस एमसीक्यू को देखिए, उसमें बोले इसमें क्या फॉल्ट है। लेट मी हेल्प यू। इसके ऑप्शंस देखा आप, ए बी सी। ऑप्शंस कम है, कम तो है, लेकिन चले हम समझते हैं कि ये 3 ऑप्शन देखें, इसमें कम तो है लेकिन लंबे बहुत हैं। जी सर, बहुत लंबे बहुत लंबे ऑप्शंस हैं और वो बेचारा जो स्टूडेंट है उनको पढ़ने में ही पूरा हो जाएगा। और इसमें फिर क्या प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि उसका रीडिंग टाइम बढ़ जाता है और नॉलेज
जिसकी रीडिंग स्पीड फास्ट होगी वो ज्यादा मार्क्स ले जाएगा और उसको करेक्टली कर लेगा, जिसकी रीडिंग स्पीड स्लो होगी वो इसको करेक्टली शायद अटेम्प्ट ना कर सके। और एज ए टीचर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी रीडिंग स्पीड चेक कर रहे हैं या उसका कंटेंट एक्सपर्टीज चेक कर रहे हैं? आप कंटेंट नॉलेज देख रहे हैं, उसकी रीडिंग स्पीड नहीं देख रहे हैं। सो मेक श्योर दैट द ऑप्शंस आर शॉर्ट, नॉट वेरी लॉन्ग। सी वाला देखिए आप कितना बड़ा है, विदाउट रीडिंग द कंटेंट कि क्या लिखा हुआ है उसकी आप लेंथ देख लीजिए। सो मेक श्योर दैट ऑप्शंस आर नॉट टू लॉन्ग, नंबर वन। लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिनेरियो नहीं दिया हुआ सिनेरियो। आप सिनेरियो को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही है, यू आर वेरी राइट। इसमें डिजिट्स सिनेरियो वो शॉर्ट इसमें पहली बात तो सही है, इसमें इसमें सर जो आई थिंक न्यूमेरिकल इसमें जो दिया हुआ है लेस देन और ग्रेटर देन, हाँ आई परसेंटेज जो थिंक न्यूमेरिकल, हाँ ये नहीं होनी चाहिए सर, ओके क्योंकि ये डाउट क्रिएट करेंगी। लेस देन बिल्कुल ग्रेटर, सही है, एब्सोल्युटली। और देखें जो सी है ग्रेटर देन 50%, क्या डी भी सी को सपोर्ट कर रहा है? वो भी 50% से ग्रेटर है ना? डी सर मोर देन और 50% ई भी ग्रेटर है, हाँ, और ई ई भी भी मोर देन ग्रेटर है। 50% है। तो हाँ एक तो तो ये इसमें गलती ये है कि ये लेस देन और ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, आपको रेंज देनी चाहिए। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरा क्या फॉल्ट है इसके अंदर? There is no proper order, sir. देयर इज नो न्यूमेरिकल ऑर्डर, थैंक यू सो वेरी मच। एक तो ऑप्शन या तो आप रेंजेस दें 20 to 30%, 35 to 55% एंड 60 to 70%, या आप स्पेसिफिक परसेंटेजेस दीजिए। इसके अंदर ऑप्शन ए, बी और सी जो है वो रेंजेस हैं, और डी और ई जो है वो स्पेसिफिक परसेंटेजेस हैं। और तीसरी फॉल्ट जो अभी आपने फौरन पिकअप की कि इसमें ये लेस देन और ग्रेटर देन नहीं देना चाहिए। इसमें क्या फॉल्ट है? ये तो लिखा हुआ है, थैंक्स सर। इसमें ऑप्शंस होमोजेनियस नहीं है। एक ऑप्शन कुछ और पूछ रहा है, एक ऑप्शन कुछ और पूछ रहा है। मेक श्योर कि आपके ऑप्शंस एक ही डायमेंशन पे हो, या तो डायग्नोसिस हो, या इन्वेस्टिगेशंस हो, या एंजाइम्स हो, या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के नाम हो। डिफरेंट डायमेंशंस वाले ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। एक्सेप्ट का वर्ड यूज नहीं करना है आपने यहाँ पे। कैन यू सी एक्सेप्ट? नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. नेवर यूज दिस, नेवर यूज दिस एक्सेप्ट। उसके दो रीजंस हैं। आपका मकसद उसकी नॉलेज चेक करना है, वो चीज नहीं चेक करनी जो गलत है। आप उससे सही बात पूछेंगे ना, एक्सेप्ट। और दूसरी बात यह है कि आमतौर पे स्टूडेंट वर्ड एक्सेप्ट को मिस कर जाते हैं एग्जाम स्ट्रेस की वजह से, इवन अगर वो ऑल कैप्स में लिखा हो या बोल्ड में लिखा हो। सो नेवर यूज द वर्ड एक्सेप्ट इन योर स्टेम। और ज्यादा इसमें सिनेरियो भी नहीं है, वो किसी खास रीजन की वजह से हमने हटा दिया। द पॉइंट आई वांट टू स्ट्रेस इज कि योर लीड शुड नॉट कंटेन द वर्ड एक्सेप्ट। चलें जी नेक्स्ट। इसमें क्या है गलती ये तो बता दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Anyone? Sir, again there are different Multiple options. dimensions They're है not homogeneous. homogeneous Okay, one option is asking the investigation में जो है वो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक को दे आर नॉट होमोजेनस। ए इन्वेस्टिगेशन है, बी एक मेडिसिन का नाम है, सी एक इन्वेस्टिगेशन है, डी एक ट्रीटमेंट है, और ई भी एक ट्रीटमेंट है। तो दे आर नॉट होमोजेनस। एग्रीड। कोई और इसमें फॉल्ट? इसमें लीड इन जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। लीड इन स्टेटमेंट, उसमें क्या फॉल्ट है? लीड इन स्टेटमेंट नॉट राइटिंग प्रॉपर नहीं है उसमें। उससे कुछ आपको एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इसके अंदर, लीड इन के अंदर। आपने बिल्कुल सही इसको कैच किया है। Anyone? History of alcohol intake, encephalopathy. So first step in management should be IV, intravenous administration देना is wrong, क्योंकि तो A ऑप्शन इन्वेस्टिगेशन है तो उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा और ये हिंट दे रहा है।
क्या मेरे जैसा इंसान भी आराम से ऑप्शन ए और सी को निकाल देगा कि ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये मैच नहीं हो रहे? जी ये सर। वर्ड इंट्रावीनियस एडमिनिस्ट्रेशन पे गौर कीजिए जी कि सर। लीडर के अंदर वर्ड यूज किया गया इंट्रावीनियस एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि सीटी स्कैन का intravenous administration से कोई वास्ता नहीं है, and so has examination of CSF. तो a good witty student automatically A और C को तो बोलेगा ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अब उसके बाद चॉइस रह जाएगी B, D और E, तो उसके करेक्ट ऑप्शन चूज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दिस इज अ रॉन्ग लीड इन, जो कि उसको क्यों दे रही है कि A और C तो है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि इसमें IV एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, probably let's move on. इसमें क्या फॉल्ट है? सर सिनेरियो प्रॉपर नहीं है, वो हमने खुद जानबूझ के निकाल दिया था। आपकी बात बिल्कुल सही है, there is no scenario here. Number 2, yes, the lead-in is not a closed question. Look at the options. If you look at option number C and D, इसमें क्या है C and D में? इसमें they're asking never. Don't, these terms should not be used. नेवर सीन। Yes. मेडिसिन में कोई चीज आमतौर पे नेवर नहीं होती है, ग्रे जोन्स बहुत होते हैं, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है, हो ही नहीं सकता, ये जरा मुमकिन होता है। तो सी और डी तो ये हैं गलत आंसर्स। तो आपने इस तरह की एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स नेवर के टर्म्स यूज नहीं करनी है। अच्छा स्टूडेंट जो कई दफा फेल हुआ है, वो उसको टाइम के साथ इम्तिहान देते देते ये समझ में आ जाएगी बात कि वो जिसके अंदर एब्सोल्यूट वर्ड्स यूज किए नेवर के, वो तो वैसे ही रॉन्ग ऑप्शंस हैं। तो वो इन दो को तो वैसे ही डिस्कार्ड कर देगा, फिर ए, बी और ई के अंदर वो डिसाइड करेगा कि क्या फॉल्ट है, कौन So सा करेक्ट। likewise, always term should also be avoided because that is also बिल्कुल, absolute. बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। इसमें देखिए आमतौर पे हम एज ए टीचर जो हम सबसे ज्यादा फोकस सही आंसर पे करते हैं और उसको बड़ा पक्का बनाने की कोशिश करते हैं, एब्सोल्यूट बनाने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए, और इस सारे प्रोसेस में जो करेक्ट आंसर है वो लंबा बन जाता है हमारा। और एक स्टूडेंट जो कई दफा इम्तिहान में फेल होके इतना टेस्ट वाइज हो गया है, वो समझ लेगा कि आमतौर पे जो लंबा आंसर होता है वो करेक्ट ऑप्शन होता है। मेक श्योर दैट ऑल द ऑप्शंस आर ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, Yes, Okay, sir. sir. अच्छा ये शायद आखिरी स्लाइड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? Never use a word both in the stem and in one of the options. अगर आप इसमें गौर से देखें तो वर्ड अनरियल यहाँ पे यूज किया गया है और यहाँ पे भी डी रियलाइजेशन ऑप्शन दिया गया है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वर्ड विल गिव अ क्लू टू द टेस्ट वाइज स्टूडेंट कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हम गलतियां सब करते हैं, हम रियलाइज नहीं करते हैं। चलो जी, मेरे ख्याल में ये 4 हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। कैन वी now agree to use the correct term for multiple choice questions? They are not BCQs, we call them multiple choice items or multiple choice questions. There are 2 types of multiple choice questions. One is true false MCQs and other is one best answer MCQ. The only MCQs that are commonly used now are one best answer MCQs, जिसकी अभी हमने practice की थी. Every multiple choice item, one best type, consists of a stem, it consists of a lead-in statement, and it consists of between 3 to 5 options, जिनमें से एक correct most correct answer होता है जिसको हम key कहते हैं और बाकी distractors होते हैं. There is a proper scheme of writing one best answer MCQ. You start with a theme, which is nothing but a patient's clinical presentation, followed by a sub-theme, which consists of diagnosis, enzyme, bacteria, virus, वगैरह. Then, based on theme and sub-theme, write down a list of options, select one option, and based on that option, write a patient scenario or a vignette,
go through the options, reduce the number to 5 or 4, and write down your options. And make sure that you revise them yourself and ask your colleague to revise them, and be careful of the technical item flaws.